قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ اگر کچھ نئے ویورز نے جوائن کیا ہے، نئے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا ہے، تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں تجوید القرآن کورس۔ تو اس کے بارے میں نے انٹروڈکٹری کلاس کل آپ کے سامنے رکھی۔ تو آج کا جو ہمارا کنٹینٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کچھ چیزوں کو کل جو ہم نے پڑھے تھے ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یعنی مخارج کو پڑھیں گے کہ مخرج کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، اس کا ٹیکنیکل میننگ کیا ہے، اس کا لیٹرل میننگ کیا ہے، اور اسی طرح پھر ہم لیٹرز میں آئیں گے، ان کے مخارج کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم حمزہ کا مخرج پڑھیں گے، ہا کا پڑھیں گے، عین کا پڑھیں گے، حا کا پڑھیں گے، غین کا پڑھیں گے، خا کا پڑھیں گے، اس طرح پھر کاف اور قاف کا پڑھیں گے، پھر اس طرح جیم شین یا کا مخرج بھی پڑھیں گے، اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ان مخارج کو ادا کرتے وقت کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں جو کامنلی لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں فاسد ہو سکتی ہیں، انویلیڈیٹ ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم فضیلت قرآن مجید سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہم ایک قرآن کریم کو پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں، تو آئیے آج بھی ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ یہ حدیث روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ۔ فرمایا قرآن مجید کا ماہر، جو ایکسپرٹ ہوگا قرآن مجید میں، وہ محترم فرشتوں، اللہ تعالی کے جو قابل احترام فرشتے ہیں، اور معظم و مکرم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایکسپرٹیز کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا حق دے رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں اور مکرم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ قرآن کو ایکسپرٹیز کے ساتھ پڑھنے کی برکت ہے۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہے کوئی شخص بیچارہ وہ بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ قرآن کریم اچھے سے نہیں پڑھ پاتا، اس کے باوجود اس کو صحیح تلفظ ادا نہیں ہوتا، تو وہ بھی ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی موٹیویٹ کیا ہے، فرمایا: والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن اس میں وہ اٹکتا ہے۔ اٹکنے کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی کن ذہن ہوتا ہے، وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا ہے، لیس انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جلدی پک اپ پاور اس کا کم ہوتا ہے، وہ جلدی پک اپ نہیں کر پاتا ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کو قرآن پڑھنا دشوار گزرتا ہے، اس کے لیے کیا اللہ تعالی نے رکھا ہے؟ لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کا 798۔ تو ان احادیث کو ہم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تاکہ ہم موٹیویٹ ہوتے رہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے قرآن کے فضائل بیان کیے۔ تو چلیے ہم اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ تو کل ہی ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن کو پڑھا تھا۔ پہلے میں نے کہا تھا ترتیل قرآن میں یوز ہوا ہے ورڈ، اس ترتیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ترتیل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تجوید، دوسرا ہوتا ہے وقف کی جگہوں کو پہچاننا۔ پھر میں نے آپ کو تجوید کی ڈیفینیشن تھوڑی بہت سکھائی تھی کہ تجوید کہتے ہیں تمام حروف، یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو خارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا۔ تو جو الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے تجوید۔
फिर मैंने कहा था हम यहाँ पे तजवीद का कोर्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्हीं दो चीजों को पढ़ेंगे। यह है मेन कंपोनेंट्स ऑफ तजवीद। आपकी डीपीपी में एक क्वेश्चन भी आया था, मेन कंपोनेंट्स ऑफ तजवीद क्या है, वो मखारिज और सिफात है। तो हम तजवीद में मखारिज और सिफात को पढ़ते हैं। मखारिज और सिफात आपको आ गए, आपको तजवीद आ गई। तो आज हम पहले पार्ट को लेंगे। पहला पार्ट क्या है तजवीद का, वो है मखरज। तो मखरज जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बता देता हूँ। मखरज ये सिंगुलर है, इसकी प्लूरल है मखारिज। मखरज वाहिद है। जैसे वाहिद जमा आपने पढ़ा होगा, किताब किताबें, ऐसे ही मखरज इसका जमा है मखारिज। ठीक है। तो वो क्या होता है मखरज, इसको हम पहले लुग़वी माना देखेंगे, लिटरल मीनिंग इसका क्या है, यानी डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या बनेगा। तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग है निकलने की जगह, प्लेस ऑफ एग्जिट और आर्टिकुलेशन। निकलने की जगह को मखरज कहते हैं लिटरल मीनिंग में। लेकिन अब हम टेक्निकल मीनिंग में हम पढ़ेंगे कि इस इल्म, जिस तजवीद के इल्म में हम मखारिज को पढ़ते हैं, इसमें इसका मीनिंग क्या है, इस्तिलाही माना इसका क्या है, टेक्निकल मीनिंग क्या है इसका। तो टेक्निकल मीनिंग इसका है जिस जगह से हुरूफ अदा होते हैं उसी को मखरज कहते हैं। अलिफ से लेकर या तक जितने हुरूफ हैं, वो जिस जगह से अदा होते हैं, उनमें से कोई भी हर्फ हो सकता है, जो जहां से अदा होगा उसका मखरज है। द पार्ट और प्लेस फ्रॉम वेयर फ्रॉम विच ए लेटर इज अटर्ड, जहां से एक लेटर निकलता है उसको कहते हैं मखरज। तो अब मखारिज कितने हैं, तो पहले अरबिक लेटर्स कितने हैं वो जरा बताइए, किसी को पता है। हाँ, हरूफ की तादाद 29 है। तो अब अगर आप गेस करेंगे तो क्या लगता है आपको मखारिज कितने होने चाहिए। वैसे होने जो चाहिए थे 29 मखारिज, क्योंकि 29 हरूफ है। लेकिन मखारिज 29 नहीं है, मखारिज सिर्फ 17 है। मखारिज सिर्फ 17 है, 17 इन दल जमहूर। जमहूर का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स जो है, जमहूरियत जैसे आपने सुना होगा ना, जमहूरियत कहते हैं ना मेजोरिटी को। तो मेजोरिटी ऑफ जो स्कॉलर्स हैं वो इस ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि 17 मखारिज, यानी किरात के अपने स्कॉलर्स होते हैं ना, हर फन के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। जो किरात के एक्सपर्ट्स, किरात के अइम्मा हैं, उनमें मखारिज का इख्तिलाफ है। बाज के नजदीक 14 भी है, बाज के नजदीक इसी तरह 15 है या 16 है। तो जिस पर ज्यादा एग्री करते हैं वो 17 है। मखारिज की तादाद 17 है। अब 17 क्यों है, क्योंकि हरूफ तो 29 है, मखारिज क्यों 17। मखारिज इसलिए 17 है क्योंकि बाज ऐसे हरूफ हैं जो दो तीन हरूफ एक ही जगह से निकलते हैं। जैसे हमजा और हा, ये एक ही जगह से निकलते हैं, तो इनका मखरज एक बन गया। इसी तरीके से 17 ऐसी जगह हैं जहां से ये 29 हरूफ अदा होते हैं। बाद से तीन भी अदा होते हैं, बाद से एक ही अदा होगा, किसी मखरज से दो अदा होंगे, किसी से एक अदा होगा, किसी से तीन अदा होंगे। तो ये टोटल निकलने की जगहें जो बनती हैं वो बनती हैं 70। अच्छा, अब आएंगे हम नेक्स्ट बात पे। जब भी हम कोई बात करते हैं, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, अरबिक में हो, किसी भी लैंग्वेज में, तो आवाज हमारी कहाँ से कहाँ तक निकलती है, यानी साउंड प्रोड्यूस करने में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मैं बताऊंगा कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, अगर हम यहां से देखेंगे ना, एंड जो सीने की तरफ हमारा हिस्सा आता है, ये मैंने एक इमेज बनाई है। ये हमारे लिप्स हैं, ये हमारा थ्रोट है, ये हमारी टंग है, ये जो आप देख रहे हैं ये टंग है। और ये जो दिख रहा है ये हमारे माउथ का वो एम्प्टी पार्ट है। ठीक है। इसी तरह ये हमारी नोज है। इसी तरह जो है ये टांगे, ये मैंने आपको बताया, ये टीथ से। हर पार्ट नहीं दिखाया गया है, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि हम जो भी बात करते हैं उसका साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी वर्ड का साउंड हम सीने से नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम पहले स्टार्ट अगर हम कहेंगे बात आवाज हम निकाल सकते तो वो थ्रोट से निकाल सकते हैं, थ्रोट के बॉटम पार्ट से। फिर ऐसे ही कुछ चीजों की आवाज हम जुबान से निकालते हैं, कुछ चीजों की आवाज हम लिप्स से भी निकालते हैं। जैसे हम मम्मा कहते हैं, पापा कहते हैं, बाबा कहते हैं, वो लिप्स से। लिप्स से बाहर कोई भी आवाज नहीं। तो साउंड प्रोड्यूस करने में, मखरज प्रोड्यूस करने में जो मेन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो फाइव। एक पार्ट है हलक। हलक जो थ्रॉट होता है हमारा, तो ये यहाँ से थ्रॉट शुरू होता है, यहाँ तक एंड होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट है लिसान। लिसान मीन्स टंग। अरबिक नेम अगर नहीं भी याद रहेंगे, आप कश्मीरी और उर्दू में याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है ना,
तीसरा पार्ट जहां से हमारे मखरज अदा होते हैं वो है जौफ। जौफ का मतलब होता है मुंह का खाली हिस्सा, जो एम्प्टी हिस्सा है ना, ये वाला, यहां से अदा होता है। ठीक है, इस तरह हो गए तीन, ये हो गया टू, ये हो गया थर्ड। इस तरह जो है ना, लिप्स से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं, तो ये हो गया फोर। उनको बोलते हैं अरबिक में शफातान। तो आप लिप्स याद रखिए, होंठों से। ठीक है, इस तरह नेजल कैविटी से, नाक से भी कुछ हरूफ की आवाजें निकलती हैं। तो नाक का जो नेजल कैविटी होती है, जिसको खैशूम कहते हैं इसको, ये नेजल कैविटी होती है। तो कुछ हरूफ यहाँ से अदा होते हैं। ये फाइव मेजर एरियाज हैं जहां से हरूफ अदा होते हैं। हलक है, जो ये है मुंह का खाली हिस्सा है। इसी तरह जो है ना, होंठ है, जुबान है, और इधर है नाक है। तो हमें जब मखारिज पढ़ने हैं, हम मखारिज को इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मखारिज में एक प्रॉब्लम ये होती है, जब हम मखारिज पढ़ते हैं ना, मखारिज पढ़ते वक्त एक प्रॉब्लम सबको होती है कि ये मखारिज याद नहीं रहते हैं। 17 है तो हम कैसे याद रखें। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँ, आप तवज्जो रखिए। मैं आपको हलक से शुरू करूंगा पढ़ाना। तो हलक से मैं ऊपर चढ़ूंगा, यहां से कौन सा हरफ अदा होगा, यहां से कौन सा हरफ अदा होता है, ऐसे ही मैं हलक से आऊंगा कहाँ तक, लिप्स तक। ठीक है, हलक से ही एक एक स्टेप में चढ़ूंगा। तो आप भी इमेज बनाते जाइए जहन में, एक इमेजिनरी ख्याल लाइए कि कहाँ से कौन सा हर्फ अदा होता है। फिर मैं ऊपर चढ़ूंगा, मैं हलक के मैं जुबान के दरमियानी हिस्से पे आऊंगा, मैं जुबान के रूट पे आऊंगा, फिर मैं सेंटर पे आऊंगा, फिर मैं इस तरह नोक पे आऊंगा, फिर मैं टीथ के पास आऊंगा, फिर मैं लिप्स के पास आऊंगा। तो ऐसे आपको सब मखारिज इंशाल्लाह याद रहेंगे। मैं आगे आपको समझाता हूँ एक एक करके। चलिए जी, पहला पार्ट जो हम लेंगे वो लेंगे हम हलक। तो पहले एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है, मैंने कहा ना हलक से ही हम शुरू करते हैं, थ्रोट से। तो थ्रोट को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया बॉटम ऑफ द थ्रोट, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। ये हो गया मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट, दरमियान वाला हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा। ये हो गया टॉप ऑफ द थ्रोट, जो ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये तीन हिस्से आपको याद रहे होंगे। ये हो गया नीचे वाला हिस्सा, ये हो गया दरमियानी हिस्सा, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा। ये तो क्लियर हो गया होगा, ये कोई टफ नहीं है। तो जो हलक का नीचे वाला हिस्सा है, यहां से दो हुरूफ अदा होते हैं। आपको वहां पे उंगली रखनी है, और अगर आपको किसी भी हर्फ का मखरज अब मालूम करना है ना, ये पहला स्टेप फॉलो करेंगे, उसको साकिन कर देंगे। ये मैंने इसको साकिन किया, मिसाल हा का मखरज मुझे मालूम करना है। उससे पहले हमें जबर लगाना है। जब उससे पहले जबर लगाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे हमजा हा जबर आह, आह। हमें वहीं से पता चलेगा ये कहाँ पे अदा हो रहा है, फिर वहीं से हम निकालेंगे हा, हा। ये एक ट्रिक है मालूम। किसी मखरज हरफ का मखरज मालूम करने का तरीका यह है कि उस हरफ को हम साकिन करेंगे, यानी उस पर जज्म लगाएंगे, और उससे पहले हाँ अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे। तो फिर हम देखेंगे वहीं से वो साउंड प्रोड्यूस होगा, जहां से उस हरफ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से हम उस हरफ को दोबारा फिर प्रोनाउंस करेंगे। तो हलक का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो मैंने बता रहा था कि हलक के थ्री पार्ट्स हैं, बॉटम पार्ट जो हलक का है, वहां से दो हरूफ अदा होते हैं। वो है हमजा, हाँ। आप वहां पे उंगली भी रख सकते हो, आपको वाइब्रेशन टाइप मालूम होगी। हमजा, हाँ। अगर नहीं मालूम होती है तो ये ट्रिक अप्लाई करें। हमजा से पहले दूसरा हमजा लगाएं, ये बनेगा हमजा, हमजा जबर आ। इस तरह हा का मखरज मालूम करना है। इस हा को लिखने का तरीका ऐसे भी है, तो जिस्म हा, जैसे मैंने ये लिखा है ना, हमजा हा। हमजा ऐसे भी लिखा जाता है, हमजा ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये भी हमजा ये भी हमजा ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमजा को लिखने के डिफरेंट तरीके वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस तरह हा ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो हमजा हा कहां से अदा हुआ, हलक के नीचे वाले हिस्से, बॉटम ऑफ द थ्रोट। तो आप पढ़िए हमजा हा, अपनी जगह आप पढ़िए गए, हमजा हा, हा, हा का साउंड निकालने दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अब आएंगे हम हलक के दरमियानी हिस्से पे। तो यहां से दो हरूफ अदा होंगे। एक है ऐन, ऐन, ऐन। ये मुश्किल होता है लोगों को पढ़ना, तो इसको दुरुस्त पढ़ना है। ऐन, ऐन, ऐन। ये निकलेगा हलक के दरमियानी हिस्से से। इसको भी आप हलक के जो दरमियानी हिस्सा, वहां पे उंगली रखिए बाहर से,
اور اس ادھर تھوڑا سا پریس کیجیے، آپ کو وہاں پہ وائبریشن اگر معلوم ہوئی تو آپ درست نکالتے ہیں. عین. عین. اچھا عین ادا کرتے وقت ناک سے آواز نہیں نکالنی، عین نہیں کرنا. عین. عین. اس طرح یہاں سے نکلے گا ہا. 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 تو کیا ہے؟ عین. ہا. عین. ہا. عین. ہا. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم یہ ٹرک اپلائی کریں گے جو میں نے بولا تھا، ٹرک جس کے ذریعے ہم مخرج ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں. حمزہ عین زبر کیا ہوگا؟ آ. 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 وہیں سے جہاں کی آواز نکلتی ہے نا، وہیں سے عین نکالی. عین. اس طرح حمزہ ح زبر آہ. آہ. تو وہیں سے ح. 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 ح کو اکثر لوگ ہا کی طرح پڑھتے ہیں. ہا کی طرح نہیں پڑھنا، یہ ہے ہا. یہ والا ح. ح. جب ہم کبھی دوڑتے ہیں تو تھک جاتے ہیں ہم، ہماری سانس جب پھول جاتی ہے تو ہم کرتے ہیں، تو وہیں سے ہا نکل. ہا. ہا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے پروناؤنس کرنا، لیکن جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے کوششیں اتنی کرتے ہیں تو وہ سیکھ جاتے ہیں، قرآن کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ تو ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے اچھے سے تو یہ نکلے گا ہا. ہا. اس طرح ہے پھر حلق کا اوپر والا حصہ. یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے غین. غین. ان کو ہمیں پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے ہمارے منہ میں کھانا ہوتا ہے نا، اس وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے ان دونوں کو. یہ ہم آگے سیکھیں گے کہ کیوں پڑھنا ہے ان کو ایسے. تو یہ ہم پڑھیں گے غین. 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 اس طرح خو. خو. کھا نہیں پڑھنا ہے، کھا نہیں پڑھنا. خو. خو. اس طرح گین. گین نہیں پڑھنا. غین. 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 اچھا غین ادا کرتے وقت بھی ناک سے آواز نہیں نکالنی. غین. خو. ٹھیک ہے. تو یہ غین اور خا کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. ان تین مخارج سے کتنے حروف ادا ہوئے؟ تو کتنے حروف ہو گئے؟ چھ. یہ چھ کے چھ کہاں سے ادا ہوئے؟ حلق سے ادا ہوئے. کہاں سے ادا ہوئے؟ حلق سے ادا ہوئے. اس لیے ان چھ کے چھ حروف کو ہم ایک نام دیں گے، وہ ہو گیا حروف حلقی. عربی میں ان کو کہتے ہیں حلقیہ. حروف حلقی کتنے ہیں؟ سکس ہیں. یہ آپ آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. تھوڑی سی ایگزامپل بھی ساتھ دیں گے کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے. یہ ہے نا ہا ہمارے پاس، یہ بھی ہا ہے. ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. دیکھو بعض لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کو ایک ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو فرق کرنا ہے. دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس حمد. یہ ہا سے، اس ہا سے حمد. اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف. کیا ہوتا ہے؟ تعریف. جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام عالمین کا. ٹھیک ہے. اگر اس ہا کی جگہ ہم نے یہ ہا پڑھا تو یہ بنے گا حمد. حمد. حمد کا معنی ہوتا ہے دھیمی آگ. اب آپ بتائیے اگر ہم نے الحمد کی جگہ الحمد پڑھا تو اس کا معنی تھا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. اگر اس کو ریپلیس اس سے کریں گے تو دیکھیں کتنا برا معنی بنے گا. اگر جان بوجھ کر کوئی پڑھے گا تو یہ کفر تک ہو سکتا ہے. تو اس لیے تجوید سیکھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. ہم پڑھتے ہیں علیم. ٹھیک ہے. علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اس عین سے. عین سے علیم. دوسرا علیم حمزہ سے بھی ہوتا ہے. حمزہ زبر لام یا زدی علی میم دو پیش علیم. علیم. یہ علیم ہے. یہ ہے علیم. علیم یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ علیم جو ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے، باٹم سے ادا ہوتا ہے. تو اس علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا. جیسے قرآن کریم میں پہ لکھا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ بے شک تو سمیع ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا. علیم. علیم ہوتا ہے جاننے والا. بے شک اے اللہ تو سمیع ہے یعنی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. لیکن اگر اس کی جگہ ہم نے علیم پڑھ لیا، سمیع العلیم پڑھا، تو یہ بنے گا بے شک تو سننے والا اور دردناک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو دیکھیے کتنا میننگ بدل جاتا ہے. تو اس میننگ کو بدلنے سے بچانے کے لیے ہم مخارج اور صفات کو پڑھتے ہیں اور تجوید کو پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے جس سے ہر حرف دوسرے حرف سے
मुमताज हो यानी डिफरेंट हो, आइन और हमजा में फर्क हो, हा और हा में फर्क हो। तो ये 6 मखारिज ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। नेक्स्ट मखरज पढ़ने से पहले मुझे टंग को समझाना है। मैंने पहले पढ़ाया ना आपको, पहले मखारिज, मखारिज पढ़ने के हमारे पास 5 मेजर पार्ट है जहां से सब मखारिज अदा होते हैं। तो एक पार्ट तो मैंने पढ़ा दिया आपको, वो है हलक। हलक से जब हम ऊपर आते हैं तो टंग हमारी स्टार्ट होती है। इस टंग को मैंने इन्वर्टेड रखा है यहाँ पे। तो इसके पार्ट्स हमें समझने हैं, क्योंकि मखरज पढ़ने के लिए इसके पार्ट्स को समझना जरूरी है। तो इसकी तरफ तवज्जो रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करनी है। इसके अरबिक नाम भी बहुत सारे तजवीद की किताब में लिखे हैं। तो हमारा मकसद है वहां से हरूफ को अदा करना, इसलिए मैंने उर्दू और इंग्लिश ही लिखा है जो आपके लिए इजी होगा। तो ये देखिए, जब हलक से ऊपर आते हैं तो टंग हमारी शुरू होती है, ठीक है। ये हो गई उस जुबान की जड़, जहां से टंग स्टार्ट होती है। और ये एंड जहां पे होती है वो हो गई जुबान की नोक। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। ये है टंग रूट, रूट ऑफ द टंग, ठीक है। ये वाली हो गई नोक, यानी टिप ऑफ द टंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब चलेंगे, ये हो गया सेंटर, जुबान का दरमियानी हिस्सा, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। ये जो एरिया है, ये वाला मिडल पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। इस तरह फिर हम पढ़ते हैं जुबान की दो साइड से, ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक ब्लू, इस तरह यहां से यहां तक ब्लू दिख रहा है। ये दो साइड्स, सेंटर के दो साइड्स जो जुबान के हैं, इनको बोलते हैं जुबान की करवटें, साइड्स ऑफ द टंग, जुबान की करवटें। मगर ब्लू लाइन तक, इधर ब्लू लाइन जहां पे एंड होती है यहीं तक इसको करवट के, ठीक है। अब एक साइड इधर भी है जो ग्रीन में है, ये वाला, लेकिन ब्लू से आगे, इधर से जहां से ये जो है ना टंग का एरिया जो है वो कम हो रहा है। इधर से देखिए, जुबान जो है ना पतली होती जा रही है इधर से, ये आर्क जैसी बन रही है। तो यहाँ इस साइड और इस साइड, इन दो साइडों को बोलते हैं जुबान का किनारा। ये एक किनारा है, ये भी किनारा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गई टिप ऑफ द टंग, जो टिप है। अब टिप से थोड़ा सा पीछे आप देखेंगे, जुबान तो ऐसे नहीं होती कि वो पेपर की तरह पतली हो, जुबान थोड़ी मोटी होती है ना। तो उसका टिप से थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं जुबान का सिरा, हेड ऑफ द टंग। इसके पार्ट समझ आ गए। ये जुबान की जड़ है, ये जुबान की टिप यानी नोक है। इस तरह ये जुबान का सेंटर यानी मिडल पार्ट है, दरमियानी हिस्सा है। इस तरह ये ब्लू पार्ट जो है ये जुबान की करवट है, इस साइड से भी, इस साइड से ब्लू साइड। इस तरह जुबान का किनारा, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, दोनों किनारे, ठीक है। इस तरह टिप से थोड़ा सा पीछे ये जुबान का सिरा है, हेड है। इसको आप याद कीजिएगा इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन हम जब इंशाल्लाह शेयर करेंगे तो वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जुबान से अदा होने वाले मखारिज। बहुत सारे मखारिज जुबान से अदा होते हैं, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। आज हम इंशाल्लाह कुछ मखारिज पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहां तक हम आ गए थे ना, हलक तक। ये हमारा हलक है, देख रहे हैं इधर तक, इधर तक हमारा हलक है। अब हलक से यहां से जुबान शुरू हो गई, ये जुबान है, ये वाला, ये सेकंड का जो पार्ट है ना, ये जुबान है। ये जुबान की जड़ है, पीछे जड़ होती है ना, ये जुबान की जड़ लगती है तालू के, तालू जो पैलेट होता है, अगर आप देखेंगे ना ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह का होता है, जिसको हम तालू कहते हैं, पीछे आप जाएंगे तो वहां पे एक सॉफ्ट एरिया होता है। अगर वहां आप टच करेंगे तो उल्टी जैसी महसूस होती है, तो वो, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, तालू का नरम हिस्सा। जुबान की जड़ तालू के उसी नरम हिस्से के साथ लगती है। तो अदा होता है वहां से ये लेटर, ऑफ, 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 ठीक है। इसको पूर्व भी पढ़ना है, ऑफ। इसको इस तरह नहीं पढ़ना है का, नहीं, ऑफ। एक तो फुल माउथ के साथ, दूसरा इसको अपने मखरज के साथ, यानी जुबान की जड़ इसके साथ लगनी चाहिए, ऑफ, ऑफ, ऑफ। देखिए, इसको भी हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहले इसको साकिन कर देंगे, फिर इससे पहले हरकत लगाएंगे, अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे, तो ये बनेगा आको, 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 आक। ये को की आवाज जहां से निकलती है ना, वहीं से कौफ निकाली, कौफ, कौफ, कौफ। उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। आप भी पढ़ने की कोशिश किया करें, और ये हमने पहले भी आपको गाइडलाइंस भेजी थी कि आप अलग कमरे में बैठा करें,
वरना आप शर्माएंगे सबके सामने जब आप कॉफ कॉफ पढ़ेंगे। इस तरह दूसरा लेटर है काफ। इसको उर्दू में हम कीप पढ़ते हैं, यहाँ पे हम काफी इसको पढ़ेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो ये दोनों काफ है, काफ। मगर इसको कहाँ से अदा करना है? ये जुबान की जड़ जो अभी लगी थी ना, ये कहाँ पे लगी थी? तालु के नर्म हिस्से के साथ। तो नर्म हिस्से से आगे हम आएंगे, दांतों की तरफ आएंगे, तो एक सख्त हिस्सा होता है, हार्ड पैलेट होती है। तो रूट ऑफ द टंग, जुबान की जड़ जब इसी हार्ड पैलेट को लगेगी, वहां से अदा होगा ये हर्फ, काफ, 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 काफ। इसको भी हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे, अक, अक, अक। ये क की आवाज जहां से निकलती है वहां से का, का। ये क्या था? ऑफ, ऑफ, ऑफ। अब ये क्या है? का, का, का। अब देखिए, इनमें भी डिफरेंस करना कितना जरूरी है। अगर इस कॉफ से, यानी इस मोटे वाले कॉफ, इसको मोटा कॉफ भी बोलते हैं, इसको बारीक काफ बोलते हैं। तो इस वाले कॉफ को हम मोटा पढ़ेंगे, फुल माउथ के साथ पढ़ेंगे कॉफ। इसको बारीक पढ़ेंगे, यानी थिन टून के साथ पढ़ेंगे, काफ, काफ। ये है कॉफ, ये काफ। ठीक है। अब इनमें देखिए डिफरेंस अगर नहीं करेंगे तो देखिए मीनिंग कितना चेंज होता है। इस मोटे कॉफ से हम जब कुल पढ़ेंगे, कुल, उसका मतलब होता है कहो। जिसे हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है, वो एक है। तो यहाँ पे कहो माना हो गया कुल का, कौफ से, मोटा कौफ से। अगर इसको डंडी वाला काफ भी बोलते हैं आधे, या छोटा काफ भी बोलते हैं। तो इससे अगर हम कुल पढ़ेंगे, कुल, इससे कुल नहीं बनेगा, कुल। कुल का मतलब होता है खाओ। अगर नाउज़ बिल्लाह मिन जालिक हमने कुल हुवल्लाहु अहद की जगह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, यहाँ पे कुल का माना था कहो वो अल्लाह है, वो एक है। अब इस कहो की जगह क्या आ जाएगा? ये वर्ड आ जाएगा। देखो इसका मीनिंग कितना चेंज होता है। तभी उलमा कहते हैं कि अगर हम ऐसी गलती करें जिससे मीनिंग चेंज हो जाए कुरान का, तो उससे नमाज जो है ना फासिद हो जाती है। इसलिए नमाजों की फिक्र करनी चाहिए। तो ये मखारिज आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट लास्ट वाला मखरज हम पढ़ेंगे आज। तो हम टंग पे आए थे, हम रूट ऑफ द टंग तो हमने पास कर लिया। पहले रूट ऑफ द टंग सॉफ्ट पैलेट से लगी थी, तो अदा होता कॉफ। फिर रूट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट से यहाँ पे लगी थी, तो अदा हुआ था कैप। अब हम सेंटर पे आएंगे, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग पे आएंगे, जुबान के दरमियानी हिस्से पे आएंगे। जुबान का जो मिडिल पार्ट है वो पैलेट के मिडिल पार्ट के साथ लगेगा। तो वहां से अदा होगा, तीन हरूफ अदा होगा। वहां पे एक हरूफ के ग्रुप अदा होगा, वो है जीब, जीब, जीब। इस तरह शीन, ये भी यहीं से अदा होगा, सेम मखरज है। शीन, शीन। जुबान के दरमियान, अब आप कहेंगे जुबान के दरमियान, तालु के दरमियान से कैसे लगे? जब भी आपको कोई चीज जो है ना चूसनी होती है, उसका मजा मालूम करना होता है, उस वक्त आप कैफियत बनाए, कैसे करते हैं आप? तो वहीं से निकालना है। जीब, शीन, या या भी, जीब, शीन, या। यहाँ पे लिखा या गैर मद्दा, एक या मद्दा होता है, उसका मखरज डिफरेंट है। ये है जीब, शीन, या। ये तीनों अदा होंगे जुबान के दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से। ठीक है। अब हम इनको वैसे प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने आपको कहा था, इजीली हमें पता चलता है कि इसका मखरज क्या है। तो हम जबर लगाएंगे, ये बनेगा अज, 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 अज। ज की जहां आवाज निकलती है ना, वहीं पे रोको जुबान को, फिर वहीं से जीम निकालो, अज, जीम। इस तरह अश, शीन, ऐसे आई, या, या, या। जैसे इय्याका, इय्याका, या, यही से निकलेगा। तो ये हो गए आज के मखारिज। तो जहां तक मैंने आपको मखारिज पढ़ाए, वो हो गए जीम, शीन, या तक। तो अब हम आएंगे लास्ट वाली स्लाइड पे, हमने वहां पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है कि कॉमनली इन हरूफ के पढ़ते वक्त कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं। हमजा और आइन में फर्क नहीं करते।
मिसरा मैंने कहा जैसे हमें पढ़ना है अलीमुन आइन से, अलीमुन, हम उसको भी अलीमुन पढ़ लेते हैं हमजा की तरफ। हमजा और आइन में फर्क करने पे आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। आइन अलग हरफ है, हमजा अलग हरफ है। जहां भी आप ऐसा करो कि कुरान मजीद को खोलो, जहां पे हमजा आ रहा है पहले तो इनके मखारिज को प्रैक्टिस करो, फिर कुरान को खोलो, वहां पे हमजा और आइन को देखो। हमजा जहां पे होगा, यानी अलिफ पे अगर जबर भी कहीं होगी ना, वो भी हमजा ही होता है। अलिफ पे जबर जेर पेश होगी, वो भी हमजा ही होता है। हमजा उसकी आवाज अलग निकलेगी, आइन की आवाज अलग निकलनी चाहिए। ठीक है। इस तरह है हा और हा। हा और हा में भी फर्क करना है। हा जो है ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, हा जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो इनमें भी बहुत लोग फर्क नहीं करते, मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से मखारिज में गड़बड़ होता है। इस तरह कौफ को आइन की जगह से बाहर निकालते हैं। कौफ पढ़ना होता है, इसको पढ़ते हैं ओ कौफ, वो ज्यादा ही हलक से निकालते हैं। हलक से नहीं निकालना है, बल्कि जुबान की जड़ लगानी है तालु के साथ, और फिर पुर करना है इसको कौफ कौफ कौफ। ठीक है। इस तरह कौफ और काफ में फर्क करना है। ये कौफ ये पुर होगा, ये वाला कौफ, ये काफ बारीक होगा। इसमें बाज लोग जो है ना हलत मलत कर देते हैं, इनको इंटरमिक्स कर देते हैं। ये कौफ है, ये कैफ है, कौफ कैफ। ठीक है। और जीम को बाज लोग गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं जीम जीम। जीम नहीं पढ़ना है, नाक से नहीं निकालनी है। और इसको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, नाक को बंद करके पढ़िए। अगर आपको वहां से कोई हवा निकलती है नाक से, फिर आपको इसका साउंड नाक से निकल रहा है, आप इसको ऐसे पढ़ते, जब आप पढ़ते हैं ए बी सी डी एफ जी, जी की तरह पढ़े। जी, मीम की आवाज लास्ट पे निकाले। ठीक है। इस तरह जीम के साथ और भी हरूफ को ऐसे ही गड़बड़ हो जाता है। कुछ हरूफ को वो है, एक हरफ है उनमें से शीन। शीन को अदा करते वक्त भी बाज लोग पढ़ते हैं शीन। शीन नहीं पढ़ना है, शीन पढ़ना है, शीन। एस एच ई शी को थोड़ा खींचे, शीन। इस तरह फिर गईन, गईन को पढ़ते वक्त भी ऐसा ही होता है। ठीक है। गईन 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 गईन। इसमें भी गईन नहीं होना चाहिए, नाक से तो आवाज नहीं निकालनी। नाक से आपको कभी भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अभी नाक से कब निकालनी वो हम आगे आपको बताएंगे, किस हर्फ में निकालनी। इसी तरह जो है ना आइन को बाज लोग आइन पढ़ते हैं, आइन। आइन यानी पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, मोटा नहीं पढ़ना है इसको। इसको पढ़ना है बारीक। अच्छा, इसको भी बाज लोग नाक से निकालते हैं आवाज, आइन आइन नहीं, आइन आइन आइन। नाक से नहीं निकलनी चाहिए आवाज। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। आप मिरर भी यूज कर सकते हैं, या मोबाइल का फ्रंट कैमरा भी यूज कर सकते हैं, और अपने आप को देख देख सकते हैं कि मैं सही अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मखारिज जो है ये मेन कंपोनेंट है तजवीद का। हम मखारिज 2-3 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। फिर प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। अपने टीचर को आप फ्री होके बताएं कि मुझे यहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कैसे इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करूंगा। चलिए मैं आज की क्लास को थोड़ा रिवाइज करा लेता हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ा। पहले मैंने एक हदीस बयान की, जिस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है उसको तो मुअज्जज फरिश्तों का साथ मिलता है और अंबिया किराम का साथ मिलेगा। लेकिन जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है, और वो कुरान उस पर गिरान गुजरता है, मुश्किल होता है उसको पढ़ना, तो उसको डबल अजर मिलेगा इंशाल्लाह। इस तरह फिर मैंने स्टार्ट किया था कि हमने कल कहाँ पे छोड़ा था। कल हमने पढ़ा था तजवीद होती है मखारिज और सिफात के साथ तमाम हरूफ को अदा करना, अलिफ से या तक जो है। फिर मैंने आपको बोला था तजवीद का एक कंपोनेंट वो मखरज है। मखरज वाहिद है, इसकी जमा मखारिज है, जिसको आर्टिकुलेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है द प्लेस ऑफ एग्जिट, जहां से निकला जाता है, निकलने की जगह को बोलते हैं। इस तरह इसका इस्तिलाही माना जो हमें यहाँ पे गर्ज है, वो इस्तिलाही माना से, टेक्निकल मीनिंग से। तो तजवीद के फन में, द साइंस ऑफ तजवीद में, मखरज किसको कहते हैं, जिस जगह से हरूफ अलिफ से या तक अदा होते हैं, द पार्ट ऑफ प्लेस फ्रॉम विच द लेटर इज अटर्ड, उसको कहते हैं मखरज। फिर मखारिज की तादाद मैंने बताई थी, इन दल जमहूर, मैक्सिमम लोगों के पास, मैक्सिमम जो किरात के अइम्मा है उनके नजदीक मखारिज की तादाद 17। ठीक है। फिर मैंने बोला मखारिज जो है ना, ये 5 मेजर पार्ट से अदा होते हैं। एक हलक, इस तरह है, दूसरा है जुबान, जिसको अरबी में लिसान कहते हैं। तीसरा है जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा। चौथा है लिप्स, शफतान जिनको कहते हैं। इस तरह पांचवा है नेजल कैविटी।
खिशुम जिसको कहते हैं, नाक का जो बांसा उसको बोलते हैं, ठीक है। खैर, तो इन्हीं 5 पार्ट्स को मैंने कहा हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक पार्ट से शुरू किया पढ़ाना, तो वो है हलक। मैंने बोला हलक के नीचे वाले हिस्से से हमजा हा अदा होते हैं, दरमियान वाले हिस्से से आइन और हा अदा होते हैं। इन हा और हा में फर्क करना है, हमजा और आइन में फर्क करना है। इसी तरह ऊपर वाले हिस्से गैन और खा अदा होते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई कि मखरज मालूम करने का तरीका क्या है। उस हर्फ को साकिन कर देंगे, उससे पहले एक जबर वाला अरिफ लगा देंगे, तो उससे हम जहां पे हमारा साउंड रुकेगा वहां से उस हर्फ का मखरज होता है, ठीक है। तो इन 6 हरूफ जो हलक से अदा होते हैं इनको हरूफ हलकी कहते हैं, या हरूफ हलकियह भी कहते हैं। फिर मैंने बोला था अगर हम इन मखारिज में गलती करेंगे, हा की जगह हा पढ़ेंगे, तो देखिए माना कितना चेंज होगा। हमद का मतलब होता है तारीफ, हा से हमद का मतलब होता है धीमी आग, तो कितना माना बदलता है। इस तरह आइन और हमजा में अगर खलत मलत करेंगे, अलीम का माना होता है जानने वाला। अगर किसी ने अलीम की जगह अलीम पढ़ा तो उसका मतलब होता है दर्दनाक। तो आप कुरान की आयत में इसको देख सकते हैं अप्लाई करके, तो कितना मीनिंग बिगड़ता है। फिर मैंने कहा था अब हमें जुबान से पढ़ना है कि जुबान से कौन कौन से हुरूफ अदा होते हैं। जुबान से पढ़ने के लिए हमें जुबान के पार्ट्स पता होने चाहिए। पार्ट्स ऑफ टंग क्या है, मैंने बोला ये जड़ है, इस तरह सेंटर वाला पार्ट ये मिडल पार्ट है, इस तरह ये टिप ऑफ द टंग है जिसको जुबान की नोक कहते हैं। जो साइड सेंटर में होते हैं ये ब्लू पार्ट जो है इसको जुबान की करवटें कहते हैं। ग्रीन पार्ट जो साइड से होते हैं टंग के इनको बोलते हैं जुबान का किनारा। और इस तरह टिप से थोड़ा सा पीछे जो है वो जुबान का सिरा है, हेड ऑफ द टंग। फिर मैंने कहा जड़ से ही हम ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि हम हलक से आए थे तो कहाँ पे पहुंचे थे, जुबान तक। जुबान की जड़ यहाँ पे शुरू हुई थी। तो जड़ से जो है ना, जड़ लगती है तालु के नरम हिस्से के साथ, सॉफ्ट पैलेट के साथ, वहां से अदा होता है ऑफ। इसको पुर भी पढ़ना है और अपने मखरज से भी निकालना है, लेकिन इसको यहां से नहीं निकालना आइन की जगह, बाज इसको आइन की जगह से निकालते हैं यहाँ पे। तो ये ऑफ है, पुर पढ़ा जाएगा लेकिन जुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से के साथ। और यही जुबान की जड़ तालु की सख्त हिस्से से थोड़ा सा इस एरिया से आगे लगेगी, यहाँ पे लगेगी मान लो, यहाँ पे जो सख्त हिस्सा अदा होता है तो यहाँ पे लगी है। तो यहाँ से अदा होता है ये काफ, इसको डंडी वाला काफ भी बोलते हैं, बारीक काफ भी बोलते हैं, जिसको उर्दू में हम कीप पढ़ते हैं। यहाँ पे कीप नहीं पढ़ेंगे, काफ पढ़ेंगे। फिर मैंने बोला कुल और कुल में कितना फर्क है। कुल का मतलब होता है कहो, कुल का मतलब होता है खाओ। तो इसका मीनिंग आप देख सकते हैं कितना बदलता है। फिर मैंने आखिरी 3 हरूफ दिखाए जो सेंटर ऑफ द टंग और सेंटर ऑफ द पैलेट टच होने से लगते हैं। मैंने बोला इसको अदा करने का तरीका ये है कि जब हम किसी मीठी चीज का मजा देखने के लिए मालूम करते हैं तो उस वक्त हम चूसते वक्त इसको लगाते हैं। तो वहां से ये 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन और या। फिर मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई जो हम करते हैं, हमजा और आइन में फर्क नहीं करते हैं। हमजा और आइन, हमजा जबर आ, आइन जबर भी आ पढ़ते हैं, बस आइन जबर आ होगा, आ हलक के दरमियान से निकलेगा। हा और हा में भी फर्क नहीं करते, बस। तो उसमें फर्क करना है, कौफ और आइन में फर्क करना है, कौफ को आइन की जगह से नहीं निकालना है। इस तरह कौफ और काफ में फर्क करना है। जीम को भी गुन्ना नहीं करना है, नाक से नहीं, नाक से जीम की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, शीन की भी नहीं, गैन की भी नहीं, आइन की भी नहीं। और आइन में एक और मिस्टेक होती है, वो ये है कि आइन को बाज लोग पुर पढ़ते हैं, इसको पुर नहीं पढ़ना है। पुर उसी हर्फ को पढ़ना है जो हम बताएंगे। फिलहाल अभी तक 3 ही हरूफ आए जिनको हमें पुर पढ़ना है, एक है गैन, खौ और कौफ। ये टोटल 7 बनते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे आपको पढ़ाएंगे और आपको याद भी रहेंगे। उम्मीद है आज का सबक कम से कम याद तो आपको रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो है ना इनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आपको इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद डीपीपी भेजी जाएगी, तो डीपीपी को आप सॉल्व किया करें, कोशिश किया करेंगे सोने से पहले ही सॉल्व करें, क्योंकि कल तक आप छोड़ेंगे हो सकता है कुछ चीजें आप भूल जाए। तो अपने कंसर्न टीचर को डीपीपी भेजें। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। समझ आ गया क्या है डीपीपी? ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। तो मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। ये 3 बार पढ़नी होती है, आप स्क्रीन शॉट उठा लीजिएगा और 3 बार भी पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप भी दोहराइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।